वेलकम बैक। मैं हूँ केतकी चिंदले और फिलहाल अभी हम रील इन ग्रूमिंग स्टेप नंबर 2 रीलिंग इन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली थैंक्स टू बोहो इंडियन, उनके इयररिंग्स हमने पहने हुए हैं। आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो डीएम कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। सो यस, एज यूजुअल दिस video is going to be bilingual. English will be the first language that I'll be using, and you can fast forward like about 3 to 4 minutes to get the Hindi version of it. So let's begin. So the last time we spoke about how this guy takes her home, makes her meet the family, and the females in the family make her feel that they get the freedom. Okay? So today we are going to speak about how the females make her feel, and the family makes her feel in general. So when she is at their house, the females, especially, somehow it so happens that during small talk, the females, the groups are divided between the males of the house and the females of the house. Invariably, that happens in every household, unless and until you're family, so wherein everyone is together, obviously. But if that's not the case, then the males and females, they just kind of drift apart, and it's organic. And that happens, and the females gush over the cuisine, okay? Her cuisine. Like whichever, if she's a Punjabi, then they'll be like, oh, we just love Punjabi food. If she's a South Indian, Keralite, they will be like, they will gush about the food. Oh my God, we love your food. If she's a Maharashtrian, they'll go about talking about, oh, we have heard so much about it, blah, 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 blah. If she's from Bengal, then they'll be like, we love the Bengali sweets. Whatever wherever she might be from, because we Indians have such a long array of like cuisines, it's mind-boggling to begin with that we are so diverse. I don't think any nation under this planet is so diverse. And they gush about her cuisine, her home food, the food that she eats every single day. They gush over it, which makes her feel even more special. She's like, oh, they are aware of the food that I eat. That's nice. And after that, we are now going to go on step C. The step C is that after making her meet his family, he starts pressurizing her to make him meet her family. He's like, oh, I made you meet my family. When am I going to meet yours? He pressurizes her. Directly, indirectly. Of course, he doesn't hold a knife against her throat, but it's like, you know, that nudging. He nudges. And the female, of course, she falls prey to it. She takes him home. And of course, her family, the female's family, of course, is polite and courteous in front of him. But the moment he leaves, the family obviously chastises her. They are like, yeah, we get it that he's your friend, but we hope it stays still friendship and it doesn't proceed. Make sure of that. He's a Muslim. And that's when the real mind games begin.
I know I keep on saying the real game begins, the real mind games begin, and when is the real thing going to begin? What is this real thing? Every single time she keeps on talking about real games, this is dangerous, that is dangerous, but yeah, I can't help it because the game keeps on upping its own self. I'll cover this. I'll cover the next topic, which is isolation, in the next video. For now, let's go on to Hindi. तो जैसे कि मैंने अभी अंग्रेजी में कहा कि हमने लास्ट वीडियो में ये कवर किया था कि कैसे वो बंदा उस लड़की को अपने घर लेके जाता है, अपने फैमिली से मिलाता है, वो फैमिली कैसे वो दिखाती है कि हमारे घर में फ्रीडम हमें मिलती है, दी जाती है। उसके बाद वो फैमिली जो भी औरतें हैं वो उस बंदी के खाने पीने के जो भी तौर तरीके हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका मतलब ये ना बहुत ही ज्यादा प्रेज करते हैं, बहुत ज्यादा ओ माय गॉड हमें तुम्हारे टाइप का खाना कितना पसंद है। यदि वो नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन खाने के बारे में बात करेंगे, साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन के बारे में बात करेंगे, वेस्ट इंडियन है, वेस्ट इंडीज नहीं भारतीय वेस्ट में है तो उसके बारे में बात करेंगे, ईस्ट में है यानी कि बंगाल साइड पे तो उसके बारे में बात करेंगे। वो कहेंगे कि इतनी तारीफ करेंगे कि भाई वो लड़की मतलब 7वें आसमान में ही चली जाए कि बाबा इनको इतनी सारी बातें पता है मेरे खाने के बारे में, जो मैं हर दिन खाना खाती हूँ उसके बारे में इनको इतनी जानकारी है और इनको वो पसंद भी आता है। अच्छी बात है ना? क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत यदि हम करते हैं तो खाना पीना, हर रोज का खाना पीना एक घर से दूसरे घर में भी अलग अलग होता है। अब मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मैं मराठी खाने के बारे में बात करूंगी। हम बम्बई से हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं। यहाँ पे मैं जात की बात नहीं कर रही हूँ तो कृपया जात पात का पॉलिटिक्स इसे ना समझे। ये रियलिस्टिक जो फैक्ट है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बम्बई के जो ब्राह्मण है हमारा खाना अलग होता है, वही आप पूना के ब्राह्मण ले लो उनका खाना अलग होता है, वही आप कोल्हापुर में जाइए उनका खाना अलग होता है, मालवनी खाना अलग होता है, आगरी खाना अलग होता है, कोली खाना अलग होता है, मालवनी भी बम्बई के मालवनी खाना अलग होता है, मालवन में मालवनी खाना अलग होता है, कोंकण में जाइए कोंकणी फूड भले वो ब्राह्मण हो उनका खाना अलग होता है। और यदि आप हर दिन, अब बम्बई की हूं मैं तो मुझे बम्बई का खाना पसंद है, तो मैं यदि पूना में भी जाऊं या कोल्हापुर में जाऊं या नासिक में जाऊं, मैं एक दिन उस टाइप का खाना खा सकती हूँ। ब्राह्मणी नहीं, मैं मराठा, आगरी, कोली इन सब के भी बारे में बात कर रही हूँ। बम्बई के जो भी है मैं उनके घर का खाना रोज खा सकती हूँ, लेकिन वही खाना यदि मैं नासिक में जाऊं, नागपुर में जाऊं, जात भले वही हो लेकिन खाना बनाने का तरीका अलग होता है, मसाले अलग होते हैं। बम्बई का जो भी मराठा इंसान है, आगरी कोली इंसान है, उनका खाना थोड़ा इतना तीखा नहीं होता जितना आप कोल्हापुर, सातारा, सांगली जाए। तो रोजमर्रा का खाना घूम फिर के खाने पे हम आते हैं और जब ये लोग खाने की तारीफ करते हैं आपके, तब कहीं जाके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर निर्माण होता है उस लड़की के। ये कितनी साइकोलॉजिकल, जिसे हम माइंड गेम्स कहते हैं, ऐसा खेल खेला जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर क पे। क। ये जो बंदा है अभी फैमिली से मिलके वो अपने घर चली गई, उसे ड्रॉप कर देता है। ये बंदा उस लड़की को अब प्रेशराइज करना शुरू करता है इनडायरेक्टली, ऐसे कुछ चाकू छुरा गले पे रख के नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसे प्रेशराइज करना शुरू करता है कि
मैंने तुम्हें अपने फैमिली से मिलाया, तो तुम मुझे अपने फैमिली से कब मिलाओगी? बंदी एक बार ना कहेगी, रुको थोड़ा टाइम चाहिए, दूसरी बार कहेगी, तीसरी बार कहेगी, आखिर एक पॉइंट आ ही जाता है जहां पे वो उसे अपने घर लेके जाती है। पॉइंट नंबर ड, घर पे लेके गई, मॉम डैड से मिलाया। ऑफ कोर्स वो लड़की के मॉम डैड उस लड़के के सामने पोलाइटली बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छा बेटा तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो, क्या करते हो, फैमिली कैसी है, सारे ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन जब वो लड़का निकलता है, घर से निकल जाता है, अपने घर में या कोई भी काम करने के लिए निकल जाता है, तब लड़की को डायरेक्टली गालियां ना सही, लेकिन लड़की को उसके मॉम डैड चिल्लाते हैं या फिर शांति से कहते हैं कि दोस्त है, दोस्त ही रहना, आगे मत बढ़ना, मुसलमान है वो। और इसके बाद जो खेल शुरू होता है, उस लड़की के दिमाग में जो उछल कूद निर्माण होने लगती है, वो डेंजरस है। आप वापस कहोगे कि हर एपिसोड के बाद आप यही कहती है अब डेंजरस है, अब डेंजरस है, अब असली खेल शुरू होता है। भाई असली खेल यानी कि क्या? अब मैं क्या ही करूं कि पहले स्टेप से ज्यादा डेंजरस अगली स्टेप शुरू होती है। और अगली स्टेप है उस लड़की को अकेला महसूस कराना। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।